हेलो गाइस, वेलकम बैक। पिछली वर्चुअल क्लास में हम मेटल सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशंस में होनिंग ऑपरेशन की चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की वर्चुअल क्लास में हम होनिंग टूल्स एंड होनिंग मशीन्स की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं होनिंग टूल्स से। होनिंग टूल्स को सामान्य तौर पर होन टूल या सिंपली होन भी कहा जाता है। As we have seen that we can perform the honing operation on different type of surfaces, and there are number of different sizes of holes that are honed particularly by long stroke honing. So there are broad range of different tools that are used in honing. Here you can see the different types of honing tools. There are different type of honing tool depending on the surface to be finished by honing process. So the diameter of these honing tools can vary from 2 mm to 1500 mm. And this picture shows the abrasive stones, the bonded abrasive stones that are used in honing process. Here these are the honing stones that are completely made of bonded abrasives, while these stones are made of abrasive that is having steel base. These bonded abrasive stones that are also known as honing stone or honing sticks also available in different shapes and sizes. We will discuss after some time. And the abrasives that are used in these stones may be of corundum, synthetic corundum, silicon carbide or cubic boron nitride or diamond. And the grid size of these abrasive that are used in honing process can range from 30 to 600. It should be noted here that in the long stroke honing we generally use the grid sizes of 100 to 150, while in the short stroke honing we generally use the grid sizes of 300 to 600. Now let's have a look about the honing tools. Here these are honing tools that are having honing stones soldered in the stone carriers. These honing tools are of different diameters to perform the honing operation on different holes. These honing tools are used in long stroke honing, that is simply in honing. That means these honing tools are used to finish the bores. Now let's understand the construction of these honing tools. यहाँ पर तीन तरह के होनिंग टूल्स दिखाए गए हैं, जिनमें ये पहला है होनिंग टूल विथ वेज, सेकंड है होनिंग टूल विथ सिंगल होनिंग स्टोन, इसमें सिर्फ एक ही होनिंग स्टोन है, एंड थर्ड वन इज होनिंग टूल विथ पैरेलल फीड ऑफ होनिंग स्टोन्स। फर्स्ट और थर्ड होनिंग टूल्स में सेवरल होनिंग स्टोन्स हैं जो इसके पेरिफेर पे डिस्ट्रीब्यूटेड किए गए हैं। सामान्य तौर पर होनिंग टूल पावर और मोशन को होनिंग स्टोन में ट्रांसमिट करने के काम आता है। होनिंग टूल कंसिस्ट द स्पिंडल नोज एडेप्टर, ए ड्राइव शाफ्ट एंड द होन बॉडी। द स्पिंडल नोज एडेप्टर इज यूज्ड टू क्लैंप द ड्राइव शाफ्ट इन द स्पिंडल ऑफ होनिंग मशीन. The honing tools that are used in long stroke honing are having two universal joints in the drive shafts, as we have seen in the last class. ड्राइव शाफ्ट में पुश रोड लगी होती है. दिस इज द पुश रोड, दिस इज द पुश रोड, ये भी पुश रोड, एंड दिस इज द होन बॉडी. पुश रोड पर फीडिंग कोन लगा हुआ है, इसे हमने 1 नंबर से शो किया हुआ है. सो दिस इज द फीडिंग कोन, दीज आर द फीडिंग कोन्स. यहाँ पर ये होनिंग स्टोन कैरियर है जिस पर होनिंग स्टोन लगाए जाते हैं, इसे हमने 2 से शो किया है. यहाँ पर ये होनिंग स्टोन कैरियर है और यहाँ पर ये होनिंग स्टोन कैरियर है. साथ ही ये एज ए एक्सपेंशन प्लेट का भी काम करता है. देन जो 3 नंबर से दिखाए गए हैं वो होनिंग स्टोन है. सो दीज आर होनिंग स्टोन्स, दिस इज द होनिंग स्टोन, दीज आर द होनिंग स्टोन्स. यहाँ जो 4 नंबर से दिखाए गए हैं ये रिटर्न स्प्रिंग हैं, जिन्हें गार्टर स्प्रिंग भी कहा जाता है. ये स्प्रिंग्स सर्कुलर टाइप की होती हैं और ओवर द पेरिफेरी होती हैं.
ये होनिंग स्टोन्स को रेडिली इनवर्ड पुश करने के काम आती हैं। एंड दिस पोर्शन is hone guide and it is used to guide the honing tool when it comes out and enters the hole। और इस तरह के होनिंग टूल में गाइड रेल लगी हुई है या जिसे गाइड बुश भी कहा जाता है, और ये होनिंग टूल को ऑपरेशन के दौरान गाइड करने में हेल्प करती है। इस तरह हमने देखा कि होनिंग टूल में पुश रोड होती है, फीडिंग कोन होता है, होनिंग स्टोन कैरियर होता है, होनिंग स्टोन होता है। कई होनिंग टूल्स में गार्टर स्प्रिंग और रिटर्न स्प्रिंग होती है। कई होनिंग टूल्स में गाइड रेल और गाइड बुश भी लगी होती है। साथ में सभी होनिंग टूल्स में होन गाइड भी लगी होती है। होनिंग टूल विथ वेज का प्रयोग सामान्य तौर पर ब्लाइंड होल्स की होनिंग करने में किया जाता है। इसमें स्मॉलर साइज के होनिंग स्टोन्स लगाए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि होनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते समय होनिंग टूल को रोटरी और ऑसिलेटरी मोशन करवाई जाती है, साथ ही वर्कपीस के अगेंस्ट प्रेस किया जाता है। तो वर्कपीस के अगेंस्ट प्रेस करने के लिए जब होनिंग टूल की पुश रोड को इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड किया जाएगा तो होनिंग टूल में लगे फीडिंग कोन के कारण होनिंग स्टोन कैरियर आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और इस होनिंग स्टोन को वर्कपीस में अगेंस्ट प्रेस कर देगा। और जब होनिंग ऑपरेशन खत्म हो जाएगा तो पुश रोड को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाया जाएगा एंड देन दिस गार्टर स्प्रिंग और रिटर्न स्प्रिंग होनिंग स्टोन्स को इनवर्ड डायरेक्शन में पुश कर देंगे। जो ये सेकंड होनिंग टूल दिखाया गया है जिसमें कि सिंगल होनिंग स्टोन लगाया गया है, ये बहुत ही स्मॉलर डायमीटर्स के होल को फिनिश करने के काम में आता है। तो ऐसे होनिंग टूल्स जो स्मॉलर डायमीटर को फिनिश करने के काम में आते हैं, इनमें गार्टर स्प्रिंग का प्रयोग करना संभव नहीं होता। इसी कारण इसमें होनिंग स्टोन को गाइड करने के लिए गाइड रेल या गाइड बुश का प्रयोग किया जाता है। एंड दिस टाइप ऑफ होनिंग टूल दैट इज हैविंग लेंथी होनिंग स्टोन्स आर यूज्ड फॉर फिनिशिंग ऑफ थ्रो होल्स। होनिंग स्टोन्स को जनरली होनिंग स्टोन कैरियर पर सोल्डर किया जाता है। अब समझते हैं होनिंग स्टोन्स के बारे में। As we have seen that there are different type of honing stones that are used to finish the different type of holes. So here are few types of honing stones. First one is standard honing stone. Second one is slotted standard honing stone. Third is solid honing stone. And fourth is compact honing stone. In all of these honing stone, the height of abrasive layer is defined by the possible in-feed path of the holder. The first one is the standard honing stone. इन होनिंग स्टोन्स में अब्रेसिव लेयर स्टील बेस पर लगी होती है और होनिंग स्टोन को होनिंग स्टोन कैरियर में सोल्डर्ड किया जाता है। होनिंग स्टोन कैरियर को होनिंग शू भी कहा जाता है और इसमें स्टोन को सोल्डरिंग प्रोसेस के द्वारा ज्वाइन कर दिया जाता है। इस तरह के होनिंग स्टोन के डायमेंशंस को W इंटू H इंटू L इंटू A से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर W इज द विड्थ ऑफ होनिंग स्टोन, H इज द हाइट ऑफ होनिंग स्टोन, L इज द लेंथ ऑफ होनिंग स्टोन एंड A इज द हाइट ऑफ abrasive layer. These all dimensions are in millimeter. Second type of honing stone is slotted standard honing stone. This honing stone is similar to standard honing stone, लेकिन इसमें longitudinal direction में एक slot कटा होता है। That's why it is known as slotted standard honing stone. But this slot is beneficial for the better cooling, cutting and chip removal. इस होनिंग स्टोन के डायमेंशंस को W इंटू H इंटू L इंटू A इंटू S से डिनोट किया जाता है। Here W is the width, H is the height of honing stone, L is the length of honing stone, A is the height of abrasives and S is the slot width or width of slot. Now third one is the solid honing stone. This honing stone consists only abrasives
That means there is no steel base. This honing stone is also soldered on the honing carrier. इस तरह के होनिंग स्टोन के डायमेंशन को W इंटू H इंटू L इंटू A से डिनोट किया जाता है. Here W is the width of honing stone, H is the height of honing stone, L is the length of honing stone and A is the layer of abrasives. Here both height of honing stone and height of abrasive layer is equal. That means H is equal to A. Fourth type of honing stone is compact honing stone. This type of honing stone is for direct fitting into the body of honing stone holders. इस तरह के होनिंग स्टोन को बहुत ही स्मॉल बोर्ड्स को होनिंग करने में काम में लिया जाता है. होनिंग टूल विथ सिंगल होनिंग स्टोन में कॉम्पैक्ट होनिंग स्टोन का ही प्रयोग किया गया था. आप वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाकर देख सकते हैं. एंड कॉम्पैक्ट होनिंग स्टोन के डायमेंशंस को W इंटू H इंटू L इंटू A से डिनोट किया जाता है. Here W is the width of honing stone, H is height of honing stone, L is the length of honing stone and A is the height of abrasive layer. This type of honing stone is also having abrasive layer on steel base. This steel base is inclined at angle alpha. Apart from these type of honing stones, there are variety of honing stones in which the abrasive layer may be of T type, G type, etc. अभी जो हमने होनिंग स्टोन्स देखे, these honing stones are composed of synthetic resins or ceramic bonds in which the abrasive grains that are may be made of corundum, cynated corundum or cubic boron nitride or diamond are embedded. The honing tool can be also as steel body. That means these honing stones are galvanically bonded to the steel. These are generally used in short stock honing. So depending on the abrasive used, the honing tools can be studied under two categories. First one is honing tools with corundum or silicon carbide and second one is honing tools with boron nitride or diamond. So first let's discuss honing tools with corundum or silicon carbide. These honing tools are having conventional abrasive grains and these honing tools receive their desired form through mechanical material removal. That means during the machining process they get their desired form. चूंकि जो नैरो होनिंग स्टोन्स होते हैं जिनकी विड्थ कम होती है वो वर्कपीस के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं इवन ड्यूरिंग देयर फर्स्ट यूज. सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेपरेट प्रोफाइलिंग प्रोसेस. But when these honing stones are used for finishing of very small diameter holes, then these honing stones must be rounded with leveling sleeves that are made of hardened steel. So अगर हमें स्मॉल डायमीटर्स के होल्स की फिनिशिंग करनी है तो इन होनिंग स्टोन को उस होल की फॉर्म में लाने के लिए लेवलिंग स्लीव्स की सहायता से तैयार किया जाता है. अब जो होनिंग स्टोन कोरुंडम या सिलिकॉन कार्बाइड के बने होते हैं वो चाहे नए हो या ब्लंटेड हो गए हो उन्हें रिशार्पन करना जरूरी हो जाता है. एंड दिस शार्पनिंग प्रोसेस कैन बी डन इन दी टू वेज एंड इट इज डन ड्यूरिंग दी मशीनिंग प्रोसेस. यानी वर्कपीस की फिनिशिंग करते समय ही होनिंग स्टोन्स की शार्पनिंग की जाती है. एंड दिस कैन बी डन इन टू वेज. फर्स्ट वन इज द to increase the contact pressure of honing stone. यानी होनिंग करते समय हम होनिंग स्टोन और वर्कपीस का जो कॉन्टेक्ट प्रेशर है उसे बढ़ा देते हैं जिसके कारण क्या है ग्रेन्स या तो स्प्लिंटर हो जाते हैं और ब्रेक अवे हो जाते हैं. सेकेंड वे इज बाय इंक्रीजिंग दी ऑसिलेशन स्पीड. होनिंग टूल की हम ऑसिलेशन स्पीड बढ़ा देते हैं जिसके कारण भी होनिंग स्टोन शार्पन हो जाता है. तो यहां ध्यान ये देना जरूरी है कि जो होनिंग टूल्स कोरुंडम या सिलिकॉन कार्बाइड के बने होते हैं उन्हें वर्कपीस की फॉर्म में प्रोफाइलिंग करना जरूरी नहीं होता.
second type of honing stones, that is honing tools with boron nitride और diamond. जैसा कि हमने अभी जाना कि कन्वेंशनल होनिंग टूल्स में हमें होनिंग स्टोन को वर्कपीस की प्रोफाइल के अकॉर्डिंग प्रोफाइलिंग करना जरूरी नहीं होता. ये प्रोफाइलिंग मशीनिंग के दौरान खुद ब खुद हो जाती है. बट इन कॉन्ट्रेरी टू दिस conventional honing tools, the tools that are made of boron nitride or diamond, in these honing stones must be adapted to the form of workpiece prior to its use. यानी ऐसे होनिंग टूल्स जो बोरोन नाइट्राइड या डायमंड के बने होते हैं उनमें होनिंग स्टोन को वर्कपीस की सरफेस के अकॉर्डिंग प्रोफाइलिंग करना जरूरी है. एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें होल्स की होनिंग करनी है. तो होल्स की होनिंग करने के लिए टूल्स को होल के डायमेंशन के अकॉर्डिंग ग्राइंड करना होता है, ग्राउंड करना होता है. एंड दिस ग्राइंडिंग इज डन ऑन एक्सटर्नल ग्राइंडिंग मशीन्स दैट कंसिस्टिंग सिलिकॉन कार्बाइड और कोरोंडम ग्राइंडिंग व्हील्स. तो इस तरह जो होनिंग टूल्स बोरोन नाइट्राइड या डायमंड के बने होते हैं उन्हें वर्कपीस की सरफेस के अकॉर्डिंग प्रोफाइल करते हैं. And after this profiling process, these honing tools have no cutting efficiency, so sharpening process is also required here. इसे भी दो तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है. पहले वे में मोइस्ट लूज सिलिकॉन ग्रेन्स को वर्कपीस और टूल के बीच में डिस्पर्स कर दिया जाता है ड्यूरिंग दी होनिंग प्रोसेस. जब ऐसा करते हैं तो यहाँ पर लेपिंग प्रोसेस होती है जो बॉन्ड्स को ग्रेन तक ले आती है, जिसके कारण टूल की कटिंग एबिलिटी वापस रिगेन हो जाती है. दूसरा वे है मोस्ट या सॉफ्ट कोरोंडम स्टोन्स का प्रयोग करते हुए होनिंग स्टोन को शार्पन करना. यहां आपने ध्यान दिया होगा कि फर्स्ट वे में हम सिलिकॉन ग्रेन्स का प्रयोग करते हैं, वहीं सेकंड वे में हम कोरोंडम ग्रेन्स का प्रयोग करते हैं. दोनों वेज में, दोनों प्रोसेसेस में ये कॉमन है कि जो लूज सिलिकॉन ग्रेन्स हैं या कोरोंडम स्टोन्स हैं उनकी ग्रेन साइज जिस होनिंग स्टोन के एब्रेसिव्स यानी कि क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड या डायमंड को शार्पन करना है उनसे कम होती है. यह इसलिए ताकि ओनली बॉन्ड ही रिमूव हो. यानी सिलिकॉन ग्रेन या कोरोंडम स्टोन्स की ग्रेन साइज क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड या डायमंड के ग्रेन से कम रखी जाती है. होनिंग टूल्स के बारे में सब कुछ जानने के बाद अब शुरू करते हैं होनिंग मशीन्स. These machines are used to perform the honing operation. Thus, these type of machines are having facility to give oscillatory and rotary motion to the honing tool. Along with this, these machines may be incorporated to give different type of motions to the workpiece also. That means workpiece may be rotated or given the reciprocating motion. Depending on the axis of rotation of spindle, these machines can be classified as the horizontal spindle honing machines or vertical spindle honing machines. In the horizontal spindle honing machines, the spindle that accommodate the honing tool is in horizontal direction. Horizontal spindle honing machine is generally used for finishing of smaller diameter bores that are having large lengths, like gun barrels. These machines look like the simple horizontal lathe machine. These machines also consist the facility to supply the coolant or cutting fluid that is very necessary in the honing process. And the vertical spindle honing machines are having vertical spindle. That means the spindle of these machines is in vertical direction. These machines are generally used for finishing of large diameter holes. However, the vertical spindle honing machines can also be used for smaller diameter holes. These machines
also have facility to give the various motions to the honing tool or workpiece, and also having facility to supply the coolant. So honing machines can be classified in two categories. First one is horizontal spindle honing machine, second one is vertical spindle honing machine.